permission of principal of our college, Dr. Bari sir, I would like to begin with the program, this workshop on entrepreneurship development. So actually there is some background for this program. Our principal sir has always motivated and has guided me to organize such kind of workshop, and he was insisting that we shall have a workshop on entrepreneurship, because as we can see that during this pandemic of COVID, we can see that a lot of people have lost their jobs, or at least a lot of issues are being faced by different people. So the best way to secure yourself is to start your own business, or is to have a startup with you. So in accordance with that, with the guidance of our principal sir, we have arranged a workshop on entrepreneurship development. This workshop is going to be delivered by a renowned financial consultant in this area, Dr. Prasad Daivelkar sir. So I take this opportunity to welcome Daivelkar sir on behalf of HR Patel Institute of Pharmaceutical Education and Research, Shirpur. So we welcome you, sir, heartily welcome you, sir, for this webinar, for this workshop on entrepreneurship development. Before beginning with the actual session and handing over the dais to Dr. Daivelkar sir, I would like to give a brief introduction about Daivelkar sir. So Dr. Daivelkar sir has completed his PhD in Pharmaceutical Sciences from North Maharashtra University, Jalgaon. He has experience of more than 20 years. He is having experience of academic as well as financial consulting. In fact, many of our faculty members are also associated with his financial consulting firm. He runs a very successful firm called as Srirang Financial Consultancy Services, and recently he has started a team of dream achievers, and which specifically works on entrepreneurship development. He is also a motivational speaker, a trainer, a YouTuber. You can see several of his videos on YouTube, several of his motivational speeches. So he is a frequent deliverer of these motivational speeches and trainer. He is expert in investment planning, in entrepreneurship development program, in business module analysis, in investment awareness program, and he has a very wide client base. So he is having clients from not only India, but also from United Kingdom, United States, Prague, Vienna, Muscat, Oman. So his client base is throughout the world. So with this brief introduction, and I forgot to tell one important achievement of his that we came to know just yesterday, that recently he has been awarded with Edelweiss Quality Icon 2020. So it's a very big achievement for you, sir. Congratulations for that. So with this brief introduction, I would like to welcome Dr. Prasad Daivelkar sir, and I would like to request him to proceed with our entrepreneurship development workshops. Yeah, thank you. So to start with, as we know, the basics, because now I am talking to my friends who are there, who are learning, who are students, So whenever we look at it as a student, we always want to know what is the basic, what is the definition. So let us start with the definition. What is entrepreneurship and who is an entrepreneur? So basically, as an entrepreneur or entrepreneurship, the person who is willing to take risk, we normally call him as an entrepreneur. And entrepreneurship is all about taking the risk, but the risk should be a calculated risk, and it should not be a risk which is not supported with the research, or the risk which is based or attached to your emotions. So the risk should be without emotions and with a lot of research. Another trait or another characteristics over here I can say is, as an entrepreneur, or the entrepreneurship is basically the ability to own and organize. Now, as you can see, and you have already mentioned that I own my own business as a director, and I'm also organizing fellow colleagues in the same field to come up as an advisor and make a wonderful career in my field.
So I am working on the both lines now. And another part is as an entrepreneurship or entrepreneurship as a basic content is the desire and capability to innovate and diversify. Now, just around 4-5 months ago, nobody would have thought that we would be taking a seminar live through this wonderful app called as Zoom. And around 5 months ago, the overall subscribers for Zoom were so less that nobody used to notice that app. But because of the situation, because of the demand of the time, there was some innovation and we can get so many good apps now. And there are so many things now. We are getting all our grocery next to our doorstep. So all these benefits is because of the innovation. So I'd like to take you to the next slide, which will specify us what is an entrepreneur. Basically, entrepreneur is a person who conducts his own business. वो खुद अपने business का responsibility लेता है, उसे entrepreneur कहते हैं. So अगर आप कहीं पे job कर रहे हो तो naturally it is not a business, you are not an entrepreneur. ठीक है? So job or being an entrepreneur, these are two different things. However, you can continue your job and still become an entrepreneur. ठीक है? Another trait, another identity of an entrepreneur is a person who sets up business deals in order to make profit. क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस अगर हमको करना है तो बेसिक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रुपया ना पैसा. What is there in it for me? मेरे लिए उसमें क्या फायदा है. So as a businessman you should always think like that. Another important factor as an entrepreneur is he is an organizer of various economic ventures. बहुत से अलग अलग इकोनॉमिक वेंचर्स को वो ऑर्गेनाइज करते हैं. Yes, you are saying something, Dr. Zawar? No, sir, nothing. You continue, please. Yeah, thank you. Yeah, thank you. So this is all about the entrepreneur. लेकिन दोस्तों जो बात मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, वो ये है कि एंटरप्रेन्योर की सोच कैसे क्रिएट की जाए. और मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, जो भी आपके 84 दोस्त अभी यहाँ पे है, वो सब वापस आएंगे और दोस्त जुड़ेंगे विद इन नेक्स्ट 1.5 आवर. बिकॉज हम ये समझने वाले हैं कि हम कैसे बड़े बने. हम ये समझने वाले हैं कि हम कैसे सबसे ज्यादा अमीर बने. हमें समझने वाले हैं कि बजाय नौकरी करने के हम खुद कैसे नौकरियां लोगों को प्रदान करें. ठीक है? सो ये सब जानने के लिए सबसे पहले बेसिक्स के पास जाते हैं. बेसिक्स क्या कहते हैं कि भाई जो भी इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उनसे कुछ सीखते हैं सबसे पहले. So let us learn from the stalwarts. As you can see here, there is a wonderful photo of Mota Bhai. You all know him as Mukesh Bhai, right? तो जब मुकेश भाई ने, ये एग्जाम्पल है उन्हीं के लाइफ का जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जब मुकेश भाई ने धीरू भाई अंबानी के पास जब वो गए, एमबीए करके जब आए थे, और धीरू भाई के पास जब गए मुकेश भाई, तो उन्होंने पूछा कि पापा, पिताजी, मैं आपकी कंपनी में अभी ज्वाइन हो रहा हूँ, तो मैं क्या रोल अदा करूँ, व्हाट इज माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा रोल क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ. तो धीरू भाई हंसने लगे, बोले अगर तेरे को ये पूछना है कि मेरा रोल क्या है और मैं क्या जॉब करूं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यू आर थिंकिंग लाइक अ मैनेजर. ज्यादा से ज्यादा आप एक मैनेजर बन सकते हो. तो मुकेश भाई सोचने लग गए कि भाई बात तो सही है. फिर धीरू भाई ने बोला कि अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो तुम मुझसे ये सवाल नहीं करोगे कि पापा मेरा जॉब और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. तुम ये खुद डिसाइड करोगे कि तुम्हें आगे करना क्या है. क्योंकि मैनेजर को बताया जाता है कि आपको ये करना है, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ये खुद तय करता है कि उसे करना क्या है. तो ये सबसे पहली सीख मुकेश भाई को उनके पहले दिन जब वो दफ्तर गए थे. अब तो हम मुकेश भाई को मोटा भाई के नाम से जानते हैं और अरबों खरबों की उनकी मिल्कियत है, बहुत सारा पैसा उनके पास है, ये हम सब जानते हैं. लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी, तो एक कन्वर्सेशन हुआ था धीरू भाई का और मुकेश भाई का. रिसेंटली 3-4 साल पहले मुकेश भाई ने एक इंटरव्यू दिया था जो मुझे बहुत पसंद है. इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था कि सर आप क्या सलाह दोगे, कोई अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो आप उसे क्या सलाह दोगे. तो मुकेश भाई ने बोला था कि सबसे पहली चीज अगर कोई आपको करनी है, करनी चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा.
प्रॉब्लम क्या है ये पहले ढूंढो, और वो प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए कि जो सोसाइटी से कनेक्ट करता हो। अगर वो सोसाइटी से कनेक्ट करने वाला प्रॉब्लम है, जितना सीवियर आपका प्रॉब्लम है, जितना बड़ा प्रॉब्लम है, और जितना क्वालिटी सॉल्यूशन अगर आप उस प्रॉब्लम के लिए ढूंढ पाते हो, अगर आप ये करते हो तो आप ज्यादा सक्सेसफुल बनो। तो पहला रोल एज ए एंटरप्रेन्योर आपको ये देखना है कि मेरे आजू बाजू क्या चल रहा है, कौन सा प्रॉब्लम आजू बाजू में है जिसको मैं सॉल्यूशन दे सकता हूं। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन समझने के लिए पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने आगे कहा है कि पहले प्रॉब्लम को समझो, सॉल्यूशन ऐसा हो कि जिसमें ये ना हम देखें कि मेरा क्या फायदा है। मान लीजिए सोसाइटी में कोई एक प्रॉब्लम है, अभी हम आगे जाके उसके उदाहरण देखने वाले हैं। जो भी कोई एक प्रॉब्लम है, कोई भी एक मसला है, उस प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम को समझने के बाद एक आप जेन्युइन सॉल्यूशन दो, ऐसा सॉल्यूशन दो जिससे सोसाइटी का भला हो। ये मुकेश भाई के वर्ड्स है कि अगर मैं अच्छा सॉल्यूशन देता हूं जिसमें समाज का भला होता है, अच्छा होता है, तो मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, पैसा तो मुझे ऐसे भी मिलने वाला है। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, और जो मैं अच्छा कर रहा हूं दैट इज गोइंग टू हेल्प द सोसाइटी। फिर उन्होंने कहा कि फेलियर्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उनसे हमें सीखना है। और आगे उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड कहा कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, जिन लोगों ने मेरे पास पैसा दिया है, जिन लोगों ने मुझे मेरी तरफ देख के अपना पैसा मेरी कंपनी में लगाया है, उन लोगों के विश्वास को कभी भी ठेस नहीं पहुंचे, ये काम मैं करूंगा, पहला काम। दूसरा काम, उन लोगों के पैसे को मैं इतनी अच्छी तरह से संभालूंगा कि मैं अपने खुद के पैसे से ज्यादा उनके पैसों की रक्षा करूंगा। ये मुकेश भाई के वर्ड्स हैं। आगे फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको एक टीम बनाना पड़ेगा, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। और आखिर में उन्होंने बोला है कि आजू बाजू में बहुत निगेटिविटीज होंगी, रहेंगी, हमेशा रहेंगी। यू विल फाइंड सिनिकल पीपल अराउंड यू, बट स्टिल यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। ये सब होने के बावजूद भी फेलियर्स आएंगे, स्टिल यू हैव टू कीप बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। क्योंकि एंटरप्रेन्योर वो है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता है। There is no other solution. Being an entrepreneur, you always have to be positive about it. अब हम देखते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये सेशन और बाकी सारे सेशंस की तरह ना हो। मैंने बहुत तसल्ली से इसे बनाया है, इट इज ऑल जेन्युइन। इसे बनाने में मेरी सोच ये है कि आपके अंदर के सोए हुए एंटरप्रेन्योर को मैं जगा सकूं। भले आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड फाइनल इन्फॉर्म में हो, या आप स्टाफ मेंबर में हो, फिर भी आप ये सोचे कि ये सब करते समय क्या मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं। क्योंकि दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर इस दुनिया को कोई खिलाता पिलाता है तो वो है हमारा फार्मर। और इस जग को, इस विश्व को अगर कोई चलाता है, आपके परिवारों में अगर कोई पैसा, शांति, अमन लाता है, सुकून लाता है, तो वो है एंटरप्रेन्योर। क्योंकि जॉब करना एज अ मैनेजर, जब हम जॉब करते हैं तब हम कुछ क्रिएट नहीं करते। क्रिएट सिर्फ दो लोग करते हैं, एक जो हमारा किसान है, जो अन्न बनाता है, फूड बनाता है, और दूसरा जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, जो लोगों के लिए जॉब्स तैयार करता है, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। सो यू शुड ऑलवेज थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। तो पहले तो समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। एक बंदा है 30 साल का, मिस्टर लोंढे। ये मुंबई में रहते हैं और रोज कम्यूट करते हैं, रोज यहां से वहां उन्हें जाना पड़ता है। और जब ये जाते हैं तो उन्हें बहुत ट्रैफिक लगती है। दिन में 2 घंटे जाने का, 2 घंटे आने का, ये उनका ट्रैफिक का मसला है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। सिग्नल तो मुंबई में 3-3, 5-5 मिनट के सिग्नल होते हैं दोस्तों, आप गए रहेंगे मुंबई में। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये जो हमारा दोस्त है गौरव, जिसकी उम्र है 30 साल, मिस्टर गौरव लोंढे, ये सोच रहा था इसके बारे में, यार मैं रोज 4 घंटे ट्रैवल करता हूँ, मुझे बहुत भूख लग जाती है। और देखो सिग्नल पे आप कहीं पे अगर गाड़ी खड़ी करते हो तो वहां पे उतर के आप कहीं से जाके, भूख लग जाती है अगर आपको, तो आप वहां पे स्नैक्स नहीं ले सकते। ये तो हो गई बात बस की या कार की। अगर आप 2 व्हीलर पे हो तो गाड़ी कहाँ पे छोड़ दो? तो ये प्रॉब्लम है ना, समझ रहे हो आप? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज अ प्रॉब्लम।
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस प्रॉब्लम, देखो जो स्लाइड है उसके राइट हैंड साइड में देखो क्या है, एक बंदा है जो सोच रहा है इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपको आधे मिनट का समय देता हूं, 1 मिनट का समय देता हूं। आप सोचिए कि आप ट्रैफिक में खड़े हैं, 3 4 5 मिनट का सिग्नल है, बहुत ट्रैफिक जाम है और आपको भूख लग गई। आप नहीं चाहते कि जो फेरी वाले आते हैं, जो भी कोई लेके आते हैं, उनसे आप अनहाइजीनिक चीजें लो। वैसे भी आजकल हम बाहर का खाना हमने कम कर दिया है बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल दिस सिचुएशन। स्टिल वी वांट हाइजीनिक, वी वांट इट टू हैव इन 2 to 3 मिनट्स। और हम ये चाहते हैं कि अगर हम कार में बैठे तो उस फूड को हम ले और आगे मूव ऑन करें। हम सिग्नल जब छूट जाए तो आराम से गाड़ी चलाते चलाते कुछ खा सके। तो ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो देखो, हमारा ये जो दोस्त है 30 साल का, आप ही की तरह सोचता था सब लोगों की तरह, उसने उसके लिए बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देखा। ये है एक सक्सेस स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये बहुत मेजर सक्सेस स्टोरी नहीं है, ही इज अ बिगिनर। मिस्टर लोंडे ने, जो थाना में रहते हैं, उन्होंने एक बिजनेस चालू किया, उसका नाम है द ट्रैफिक वड़ा पाव। देखो कितना सिंपल आइडिया है। अब क्या होता था, जब आप लाइन में खड़े हो, जब आप सिग्नल पे खड़े हो, जब ट्रैफिक जाम में खड़े हो, भूख लग गई, तो ये लोग थाना के अलग अलग सिग्नल पे इन बक्सों में बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी क्वालिटी का और अच्छा उसके साथ सॉस वगैरह, आपको जानते हो वड़ा पाव, शायद आपको भूख अगर लग गई, किसी का खाना नहीं हुआ होगा तो अभी भूख लग गई होगी आपको ये देख के, तो ये सब वो प्रोवाइड करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हाइजीनिक है और सबसे सस्ता है। बहुत अच्छी पैकिंग है, मतलब ऐसा भी नहीं कि अगर आपने खा लिया तो आपके हाथ ऑयली हो गए, ऐसा नहीं है। उसके साथ नैपकिन भी देते थे। तो ये सोच है। देखो, मैंने आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करा और उसके लिए उन्होंने क्या सॉल्यूशन देखा है, क्या सॉल्यूशन दिया है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। एम आई क्लियर टू यू ऑल? आप चाहो तो टेक्स्ट बॉक्स में मैसेजेस कर सकते हो, यू कैन इंटरैक्ट विद मी एज वेल। सिर्फ बातें जो है, जो भी सवाल है, वो हम आखिर में करेंगे। ये बात आपको क्लियर होगी कि प्रॉब्लम क्या था, उसके लिए सॉल्यूशन उन्होंने क्या ढूंढा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। एक प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। एक 10-11 साल का बच्चा था जो अपने अंकल के पास गया था और वापस अपने घर पे आने के बाद उसको याद आया, यार कल तो मेरी एग्जाम है और मैं अपनी एग्जाम की बुक अंकल के पास छोड़ आया, मैं वहां पे भूल गया। अपना ऐसा होता है ना, जब अपने को प्रिपरेशन लीव लगती है, दोस्तों जो मेरे फार्मेसी के दोस्त है अपने साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको याद होगा जब दिवाली में मई के महीने में प्रिपरेटरी लीव रहती है, हम बहुत सारी किताबें, लगभग मैं तो बोलता हूँ 40-50-100 किलो की किताबें हम घर पे लेके जाते हैं। ये अलग बात है कि जब तक एग्जाम के एक दिन पहले हम हॉस्टल में वापस नहीं आते, तब तक एक भी किताब हम नहीं खोलते। ये सही है कि नहीं? तो वैसा ऐसे ही उस दोस्त के साथ कुछ हो गया। अंकल के पास को नोटबुक लेके गया लेकिन वहां पे भूल गया। तो जब सुबह पापा जा रहे थे ऑफिस में, तो उन्होंने बोला पापा से कि पापा मैं वो नोटबुक भूल गया हूँ, कैन यू अरेंज द बुक फॉर मी? तो पापा बोले यार वो अभी अंकल के घर से यहाँ पे लेके आने का है, अगर वो बुक तो टाइम लग जाएगा। बोले कितना टाइम लगेगा? बोले 1-2 दिन में तो आ जाएगा। बंदा बोला अरे डैडी मेरी तो कल एग्जाम है, 2 दिन के बाद बुक लेके आओगे तो कैसे चलेगा? फिर क्या हुआ, उसने बोला पापा ऐसा नहीं हो सकता कि आज के आज मेरे को बुक मिल जाए? बोले हो सकता था, अगर तुमने सुबह 8 बजे किसी कुरियर कंपनी को वो पैकेट दिया रहता तुम्हारे अंकल ने, तो शाम को 8 बजे तक आपको ये मिल जाता। बोले अच्छा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हाँ बोले उसके साथ एक दिक्कत और भी है कि उसके लिए कुरियर के चार्जेस 250 रुपया लगेंगे। तो ये बंदा सोचने लगे, उम्र देखो बंदे की दोस्तों, उसकी एज देखो क्या है। उसकी एज, जब उसको ये प्रॉब्लम उसके सामने आया तब उसकी एज थी सिर्फ 11 साल। और बंदे का नाम है, आप शायद आपने किसी ने देखा होगा, सोचा होगा, इस लड़के का, होनहार लड़के का नाम है तिलक मेहता। अब क्या करा उसने? ये प्रॉब्लम तो आपके लिए भी आ सकती है, किसी के लिए भी आ सकती है। तो उसके ऊपर उसने बहुत सोचा और आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया एट द लोएस्ट एज, at an age of 13, Mr. Tilak Mehta is an entrepreneur who is having overall turnover of 100 crores in Mumbai. सोचिए इसके बारे में। इसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। उसको प्रॉब्लम सामने आया, उसने उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए चेष्टा की, कोशिश की, और उसको मिस्टर तिलक को, मास्टर तिलक को
उसका सॉल्यूशन मिल गया। पता है कैसे काम करते हैं? इसके बहुत सारे यूट्यूब वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा इसके ऊपर। लेकिन ये करते क्या है, पेपर एंड पार्सल्स इस नाम से उन्होंने एक कंपनी का गठन किया। उनके साथ उन्होंने 100 कोर कमिटी, 100 लोगों की कोर कमिटी बनाई। इसमें ये सारे जो लोग थे, उनके फादर थे, अंकल थे, मामा थे, सारे लोग थे। इनको तो टाइम नहीं था दिन भर में। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोर कमेटी की जो मीटिंग होती थी, ये होती थी रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक। रात में ये सब लोग काम करते थे, सोचते थे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फिर इन्होंने क्या किया, बहुत होमवर्क किया, एक ऐप बनाया और मुंबई में जो सबसे अच्छे डिलीवरी करते हैं डब्बा वाले, उनके साथ टाइप कर दिया। आज उनके साथ 300 डब्बा वालों ने टाइप कर लिया है। और दोस्तों, मुझे बताने में खुशी हो रही है आप सब लोगों को, इसमें होता यह है कि सुबह अगर 8 बजे आप किसी को पार्सल देते हो तो दोपहर में 2 बजे तक वो पार्सल मिल जाता है, और वो सबसे सस्ती कॉस्ट में, केवल और केवल 40 रुपए में। सब शॉक्ड हो गए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, डीटीडीसी हो गया, डिलीवरी हो गया, बहुत सारी कंपनियां थी, फेडेक्स है, उनके तो होश उड़ गए, भाई ये कर कैसे लेता है। तो उसने बहुत बढ़िया लॉजिक उसमें बनाया। इसमें डिटेल में भी आप जा सकते हो। यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पे इसलिए लिया है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपका सॉल्यूशन प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाला होना चाहिए, और उसके लिए सोच बहुत जरूरी है। जाते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों, ये पीरियड जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, ये है लगभग 2016-17 की बात। भारत में 3-4 कंपनी की इंटरनेट सेवाएं होती थी। उसमें आइडिया था, वोडाफोन था, एयरटेल था, एयरसेल था, और बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां थी। रिलायंस कम्युनिकेशन बोल के अनिल भाई के पास जो कंपनी थी, वो भी सेवा सब लोगों को मुहैया कराती थी। अब हुआ ये 2016 में क्या था, आपके पास, मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको याद होगा नहीं होगा, आप शायद 10th-12th में होंगे, कभी पता नहीं मुझे। अगर जो आज फाइनल ईयर में जो दोस्त थे अपने, उन्होंने ये गौर किया होगा। तब होता ये था, 1 GB डेटा, 2G और 3G का 1 GB डेटा आपको अगर चाहिए तो वो आपको पैसे चुकाने पड़ते थे महीने भर के लिए 150 या 200 रुपया। आपको याद होगा, बहुत महंगा था डेटा। वॉइस कॉलिंग होती थी। तो ये सारी चीजें हैं। जब ये स्पीड कम पड़ रहा था, 4G की सेवा नहीं थी, वाईफाई मिल नहीं रहे थे लोगों को, और देखो वो लड़की जो वहां पे फ्रस्ट्रेट हो गई है कि उसको इंटरनेट कवरेज अच्छा नहीं मिल रहा है, स्पीड स्लो है और कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मैं आपको समय देता हूं आधे मिनट का सोचने के लिए। सिर्फ सोचिए, आपका माइंड ऑन करने की जरूरत नहीं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक, बिकॉज अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो सोचना बहुत जरूरी है। मैं आपको समय देता हूं आधे मिनट का। कुछ सॉल्यूशन आपको समझ में आया? आपने शायद सोचा होगा, आप चाहो तो उसमें टाइप कर सकते हो। जो टाइप के लिए जो जगह है यहाँ पे, SMS आप इसमें डाल सकते हो, उसमें टाइप करो ताकि पता चले आपके सॉल्यूशन। जब तक आप सोच रहे हो, आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। देखो, ये सब चल रहा था, तब जो सक्सेस स्टोरी है, जो कि आप सब लोग जानते हो और जो हमने देखा, द सक्सेस स्टोरी आई एम टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन द सक्सेस स्टोरी ऑफ जियो। आपको याद होगा, देखिए जियो की सक्सेस स्टोरी क्या है। ठीक है, जियो ने क्या करा, 2 मिनट में मैं बताता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। क्या था, बहुत सारी कंपनियां थी और उनका नेटवर्क अलग था, 2G था, 3G था, बहुत कॉस्टली था, इसलिए उनके डाटा के जो प्लान थे वो भी बहुत महंगे थे।
मोटा भाई ने क्या किया, बहुत शांति से, बहुत सलीके से, बहुत तसल्ली के साथ 2016 से अप्रूवल लिया गवर्नमेंट का, और 2018 तक उन्होंने, आपको भी मालूम नहीं चला होगा, आपके अगल बगल में, आजू बाजू में, आस पड़ोस में ऑप्टिक फाइबर जमा दिए ऑल ओवर इंडिया। अब ये जो ऑप्टिक फाइबर की टेक्नोलॉजी है, जो जिसे हम 4G कहते हैं, उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, एक बार सिर्फ खर्च करना है, उसके बाद कोई खर्च नहीं उसमें। ये करते समय उन्होंने लगभग 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने रोल आउट कर दिया प्लान को, और मार्केट में डेटा सबसे सस्ता देना चालू कर दिया। अब जब इतना सस्ता डेटा मिलने लग गया तो कॉम्पिटिटर्स परेशान हो गए। आपके सामने उदाहरण के तौर पर मैं एक चीज पेश करना चाहता हूं दोस्तों, आप देखिए इस पे, ये देखिए यहां पे जो आपको दिख रहा है सामने, आई ट्राई टू एनोटेट इट। यहां पे जो है ना दोस्तों, ये पूरा गणित है अपने मोटा भाई का। उनका टारगेट ये था, उनका फोकस ये था कि अगर जो 105 करोड़ की जनता है जो कि मोबाइल इस्तेमाल कर रही है आज के दौर में, उनमें से केवल 50 करोड़ भी मेरे पास आ गए। टारगेट तो उनका लगभग 80%, 80-85 करोड़ का टारगेट है, पर अगर मान लीजिए 50 करोड़ भी आ गए, 60 करोड़ भी आ गए, और हर एक का खर्च महीने का सिर्फ 200 रुपए भी रहता है ना दोस्तों, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि लगभग 1 लाख करोड़ से लेके 1.25 लाख करोड़ की हर साल, हर महीने उनको आमदनी होगी। उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है दोस्तों, 2.5 लाख करोड़ की। वो भी उन्होंने जेब से किया था क्या, उन्होंने बैंकों से लोन लिया था। उन्होंने क्या किया, बैंकों से लोन लिया, पूरा नहीं लिया, काफी मोटा लोन लिया, पर पूरा नहीं था, कुछ लोन उठाया, जितना पॉसिबल है अपने कंपनी से डाला, उस आइडिया को सक्सेस किया, मार्केट में कंपटीटर्स को तोड़ दिया, और मार्केट में कंपटीटर्स को तोड़ने के बाद उन्होंने मोनोपोली हासिल कर ली, एक तरह से मोनोपोली हासिल कर ली। और जब ये मोनोपोली आ जाती है दोस्तों, अब सोचिए आप जरा, 50 करोड़ भी कस्टमर अगर उनके हो जाते हैं तो महीने में 1 लाख करोड़ उनकी इनकम होगी। साल भर में उनकी कीमत, इनकम सोचिए आप कहां से कहां चले जाएंगे। तो इसे कहते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना। प्रॉब्लम क्या था, डाटा सर्विसेज स्लो थी, बहुत महंगी थी, कवरेज अच्छे नहीं थे, 2G और 3G था। इन्होंने क्या करा, सब कुछ ऑलमोस्ट शुरू में सब फ्री में बांट दिया। इसको बोलते हैं लार्ज स्केल पे काम करना। और फिर उन्होंने क्या किया कि जो मैं दे रहा हूं डाटा, उसके लिए आपको क्या करेगा, आप क्या करेंगे, पहले तो सिम फ्री में ले लो, सारी चीजें फ्री में ले लो, मोबाइल फ्री में ले लो, ऑलमोस्ट फ्री में ले लो, और उसके बाद जब आप इसका डाटा इस्तेमाल करोगे तो उसके बेनिफिट कंपनी को आएंगे। इसलिए दोस्तों फेसबुक और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने हाल ही में रिलायंस में जियो का स्टेक लिया है, माने शेयर खरीदी करे। अब आप सोचिए, 2 या 3 साल में बैंकों से लोन लिया, कुछ खुद का पैसा डाला, 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा सॉल्यूशन बनाया कि जिसमें हर महीना 1 लाख करोड़ आप कमा सकते हो। और फिर उस जियो को पार्शियली उन्होंने बेचा बाकी स्टेक होल्डर्स को, जैसे मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाले हैं, उन्होंने कुछ उसमें सौदेबाजी की और कुछ उसमें से पार्ट खरीद लिया। उससे क्या हो गया, नगद वापिस आ गया, पैसा वापिस आ गया। जो पैसा वापिस आ गया वो बैंकों को चुका दिया। अब क्या हो गया, 2-3 साल मैंने पैसा यूज कर लिया, उसका ब्याज दे दिया, एक अच्छा असेट क्रिएट कर दिया। उस असेट में से सिर्फ थोड़ा सा 10%, 20%, 30% मैंने लोगों को बेचा, और वो पैसा आने के बाद मैंने बैंकों को ऋण वापिस कर दिया। तो इसका मतलब यह हो गया कि मोटा भाई ने 3 साल में जो 2-2.5 लाख का करोड़ 2-2.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया था या इन्वेस्टमेंट करा था, वो ऑलमोस्ट नील हो गया दोस्तों। मतलब जियो जो आज खड़ी है, या फिर आगे 2 साल में जियो जो है पूरी तरह डेट फ्री हो जाएगी, और 3 से 5 साल में जियो की लगभग 5 लाख करोड़ का बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं सोच। हमने छोटी सोच से चालू किया। छोटी सोच इसका मतलब यह है कि छोटा प्रॉब्लम, फिर हम थोड़े बड़े पैमाने पे आ गए, पेपर एंड पार्सल, क्योंकि बंदा छोटा सा बंदा है, आप ही की एज क्या है, आपसे छोटा है, 100 करोड़ का आज उसका टर्नओवर है। उससे थोड़ा और ऊपर गए हम मोटा भाई के पास, तो देखो बड़े लोग, बड़ी सोच। मोटा भाई ने 4 साल में पूरा गेम चेंज कर दिया।
ठीक है, ये उदाहरण मैं इसके लिए दे रहा हूं दोस्तों, आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि ये सोच के बारे में आप सोचो। चौथा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है, आप चाहो तो कुछ शेयर भी कर सकते हो इस मामले में। एक चौथा एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहता हूं। प्रॉब्लम यह है कि लोगों को ना आज समय नहीं है किसी भी चीज के लिए, बाहर जाने के लिए, या फिर अगर आप बोलो तो जाना तो चाहते हैं, घूमना तो चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये हो रही है उनको कि उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, ट्रैफिक बहुत है, सबके पास कम टाइम है। देखो इधर साइड में एक वॉच लिखी है कि हरी अप, मेरे पास टाइम नहीं है। खाना तो बहुत अच्छा खाना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, दिक्कत है। फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो अभी सोचिए इसके बारे में क्या सोल्यूशन हो सकता है। मैं वापिस आपको टाइम देता हूं आधे मिनट का इसके ऊपर सोचने के लिए, एंड आई विल गेट बैक टू यू। मैं अज्यूम करता हूं कि शायद आपने कुछ सोचा होगा इस समय में, ठीक है। सो शैल वी गो टू द सॉल्यूशन नाउ। Shall we go to the solution now? Yes, yes. Yes. Now friends, ये सब आप लोग जानते हो, जोमेटो, स्विगी, उबर, ये सारी चीजें, और इन सब चीजों में सारे हमारे दोस्तों को इंक्लूडिंग मी, हम सब लोगों को, मेरे बेटे को भी, मेरे फैमिली को भी, हम सब लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर, और हमें बहुत अच्छे डिस्काउंट भी मिलते हैं। तो ये हमारी इंडियन मेंटेलिटी की, अगर डिस्काउंट अच्छे मिलते हैं तो हमें बड़ा आनंद होता है कोई भी चीज खरीदने में, सही है कि नहीं है। अब देखिए इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। बहुत लोगों को ये प्रश्न आता है, उपस्थित होता है, जब हम सोचते हैं कि यार ये लोग पैसा कैसे बनाते हैं। जब भी इनकी बात आती है उबर के सक्सेस स्टोरी की कि वो कैसा पैसे बनाते हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उनके बिजनेस मॉडल क्या है। प्रॉब्लम तो हमारे सामने आ गए, उबर, स्विगी, जोमेटो वाले ने बिजनेस मॉडल क्या क्या बिजनेस मॉडल अपने सामने रखा और वो कैसे फायदे में रहे, उसके बारे में सोचते हैं। देखिए यहां में तीन लोग होते हैं, एक है क्लाइंट, उपभोक्ता, दूसरे है डिलीवरी बॉय, ठीक है, तीसरा है उबर, स्विगी, जोमेटो, उनके ऐप और उनकी अलग अलग सर्विसेज, और सबसे इंपॉर्टेंट जहां से आप खाना उठाएंगे वो रेस्टोरेंट। तो ये उबर और जोमेटो वालों ने, सब लोगों ने क्या किया, इन रेस्टोरेंट के साथ टाइप कर लिया। मान लीजिए, ये समझ लीजिए, बहुत इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि क्या है इसके पीछे का राज। मान लीजिए उबर और जोमेटो और इन सब लोगों ने किसी रेस्टोरेंट के साथ टाइप कर लिया। अब उस रेस्टोरेंट में नॉर्मली क्या होता था कि दिन में 50 लोग आते थे खाना खाने के लिए, या 100 लोग आते थे, और उसमें हमें करना क्या पड़ता था, उन सब लोगों को सर्विस देना पड़ता था, वेटर का खर्चा था, है ना, वो उस जगह का रेंट होता था, बिजली का बिल, एसी का बिल, सारी चीजें थी। तो इन कंपनी ने क्या बोला रेस्टोरेंट वालों को कि सर आप ऐसा कीजिए, हम आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, हम आपकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे और लोग आपके पास आएंगे नहीं, आपकी जो ये कैपेसिटी है उसको आप चालू रखिए, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, हम आपको इनकम बढ़ाने का अलग तरीका बताते हैं। क्या तरीका है? तरीका वही है सर, जो आपका पेंट्री है उसके अंदर बाकी का प्रोडक्शन आप डबल कर दो, और हमारे बॉयज आएंगे, हमारे लड़के आएंगे, माल उठाएंगे वहां से और क्लाइंट के घर तक डिलीवरी पहुंचाएंगे। इसका मतलब है सर, एक रात में, एक दिन में आपका सेल डबल हो सकता है। तो सारे रेस्टोरेंट मालिकों को बहुत अच्छा लगा, यार वंडरफुल, ये तो अच्छी बात है।
क्योंकि वैसे भी बहुत बार रेस्टोरेंट्स में होता क्या था, बहुत सा खाना वेस्ट भी जाता था, क्योंकि बहुत बार कभी क्लाइंट कम आ जाते थे, बारिश आ जाती है, बहुत धूप है, तो प्रॉब्लम आती थी। तो ये रेस्टोरेंट वालों को अच्छा आइडिया बहुत अच्छा लगा। फिर अभी क्लाइंट के हिसाब से क्या होगा, इन लोगों ने जब टाई अप कर लिया तो क्लाइंट को घर बैठे बैठे अच्छा खाना मिल गया। अच्छा, उसी कॉस्ट में मिल गया जिस कॉस्ट में अगर वो जाना चाहते रेस्टोरेंट के पास, तो वही कॉस्ट में इधर घर पे मिल गया। और डिलीवरी जो चार्जेस लगते हैं इनको, उसमें भी ऑप्शन थे। शुरू में तो डिलीवरी भी फ्री थी, आपको याद होगा। तो डिलीवरी ऑप्शन में भी ऐसा है कि आप 6 महीने का, साल भर का उनके साथ टाई अप कर लो इन कंपनी के साथ, तो डिलीवरी भी फ्री थी। तो आप ये सोचेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि अगर 100 रुपए की प्लेट है किसी भी, मान लीजिए कोई भी चीज, आपको सोयाबीन चिली हो गया, मान लीजिए एग्जांपल, देखो मुंह में पानी आ गया होगा आप लोगों के। तो मान लीजिए आपको शाम को सोयाबीन चिली खानी है, अभी बहुत अच्छा माहौल है, बारिश गिर रही है, और चाय है घर में, आपने मम्मी को बोला है कि सूप बनाओ एंड आई वांट टू हैव अ गुड क्वालिटी सोयाबीन चिली। अब वो 100 रुपए में आती है, डिलीवरी चार्जेस मान लीजिए 10-15 रुपया लग गया। तो क्या किया आपने, पैसा किसको दिया, या तो कैश में वो लड़के को दिया, डिलीवरी बॉय को, या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। अब आगे का किस्सा सुनिए, आगे इसमें जोमेटो, स्विगी, उबर पैसा कैसे बनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सुनेंगे, सोचेंगे तो आपको ये पता चलेगा। दरअसल बात ये होती है, एज अ क्लाइंट वो आपसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, आपको कन्वीनियंस देते ताकि उनका सेल बढ़े। ये टाई अप करते हैं रेस्टोरेंट वालों के साथ, उनको बोलते हैं, और इनको मालूम है, इन्होंने बहुत, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने बहुत अच्छा स्टडी किया है मार्केट का। इनको मालूम है कि अगर सोयाबीन चिली 100 रुपए में बेची जाती है, तो उसको मोटे पैमाने पे, लार्ज स्केल पे होटल में बनाने का खर्चा जाता है लगभग 30 रुपया, और ये बचा हुआ 70 रुपया पूरा रेस्टोरेंट का प्रॉफिट है। तो ये उन्होंने रेस्टोरेंट वालों के साथ शेयर किया, तो उन्होंने बोला हाँ ये बात तो सही है। पर रेस्टोरेंट वालों ने बोला यार, ये जो सब मेंटेनेंस हम करते हैं, पूरा खर्चा, सर्विस देते हैं, वेटर का पगार है, लाइट बिल है, एसी का बिल है, उसका भी तो खर्चा है, उसके 20 रुपए हो गए। तो मान लीजिए रेस्टोरेंट में जब माल बनता है और उधर परोसा जाता है, तो रेस्टोरेंट वाले को 50 रुपए में बनता है और 50 रुपए का प्रॉफिट है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं तो आप कल बोलेंगे मुझे कॉल करके, सर सोयाबीन चिली हमारे यहाँ पे तो 80 रुपए में मिलती है, शिरपुर में आपने गलत बता दिया। आप सब पॉइंट को समझने की कोशिश करें। तो दिक्कत ये थी, होटल वालों ने मान लिया कि सर मुझे 85 रुपए का फायदा हो रहा है। जोमेटो वालों ने वापस उनसे बोला कि देखो सर, अभी अगर आपको ये आप बोल रहे हो 50 का फायदा हो रहा है हर एक प्लेट में, लेकिन हम आपका 20 रुपया भी तो बचा रहे हैं। तो अगर आपका 20 रुपया बच रहा है, जो आपका फायदा है, तो उसे हमें, वो हमारी वजह से फायदा हो रहा है, तो उस 20 रुपए का हम आधा आधा कर लेते, तो हमें 10 रुपए मिल गए, आपको 10 रुपए मिल गए, ठीक है। अब 50 का हो गया भाव, तो ये 50 रुपए का आपका नेट प्रॉफिट था, वो तो इंटैक्ट है। अब अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, सर्विस हम दे रहे हैं, हमारे डिलीवरी बॉय जाके जा रहे हैं वहां पे, पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपकी मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको सिर्फ बनाना है उस प्रोडक्ट को, तो आपको ये 50 रुपए का जो प्रॉफिट है उसको भी हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। मतलब जो हमने आपका कॉस्ट कम किया उसको भी शेयर करो, और जो प्रॉफिट हमने दिया है, हमारी वजह से मिला है, उसको भी शेयर करो। तो ठीक है, बोले कोई बात नहीं। तो 50 रुपए का प्रॉफिट भी मान लीजिए 50-50 शेयर हो गया। तो 100 रुपए की प्लेट आपको 100 रुपए में या 110 रुपए में मिली, करेक्ट है। तो आपने 110 या 115 रुपए डिलीवरी बॉय को दे दिए। उसके बाद क्या हुआ, डिलीवरी बॉय ने वो कैश दूसरे भी सब लोगों का मिला के जमा किया, तो डिलीवरी बॉय ने सब कैश तो जमा कर दिया, तो 115 रुपए मिल गए उबर को या जोमेटो को या स्विगी को, और उनको होटल वालों को कितना देना था, आप बताइए, आप कैलकुलेट कीजिए। अगर 30 रुपया कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग, 10 रुपया प्रॉफिट शेयरिंग था, जो कॉस्ट रिडक्शन हो गया, और जो बचा हुआ 50 था, उसमें 50-50 का कॉस्ट शेयरिंग था या प्रॉफिट शेयरिंग था, तो 25 और 10 35, और ये 30, सिर्फ 65 रुपए उनको देने थे उबर वालों को, जबकि स्विगी, जोमेटो और उबर वालों को मिले थे 110 या 115 रुपए। देने कितने थे, 65। अब इनके हाथ में कितना पैसा बच गया दोस्तों, इनके हाथ में बच गए 35 रुपए ये, और ऊपर के 10 या 15 जो डिलीवरी चार्जेस बोलते आपके लिए। क्लियर है, ये जो डिलीवरी चार्जेस उन्होंने लिए थे आपसे या नहीं भी लिए थे, फिर भी 35 रुपए का नेट प्रॉफिट है। अब आप बोलेंगे सर ये जो डिलीवरी बॉय है उसका भी तो खर्चा है। अब देखिए डिलीवरी बॉय के साथ टाई अप क्या है, डिलीवरी बॉय के साथ टाई अप ये है उनका
कि भैया दिन भर में आप अपनी गाड़ी चलाओ, अगर आपने दिन भर में 25 या उससे ज्यादा डिलीवरीज की तो हम आपको एक एडिशनल बोनस देंगे। तो आप सोचिए अब ये कर क्या रहे हैं। 25 डिलीवरी मतलब क्या हो गया, मान लीजिए 20 डिलीवरी का टारगेट रखते हैं, 20 डिलीवरी, हर एक डिलीवरी पे लगभग 35 रुपए तो फिक्स है मिलना, 35 रुपए तो मिलने वाला है। और दूसरा क्या है, 10-15 रुपए पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो माने एक डिलीवरी पे कम से कम 50 से 60 रुपए मिल रहा है। और एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो यहाँ पे सोचने वाले बंदे बैठे हैं, हमारे दोस्त बैठे, बहने बैठी है, हमारे स्टाफ मेंबर्स बैठे हैं, किसी को शायद किसी ने सोचा होगा कि सर आपने उदाहरण तो दे दिया स्विगी जोमेटो का सिर्फ 100 रुपए का सोयाबीन चिली का, लेकिन मुझे एक बात बताए दोस्तों कि कितने लोग हैं जो सिर्फ 100 रुपए का माल मंगाते हैं। मैंने खुद जब भी ऑर्डर किया है, कम से कम 6 लोगों की फैमिली है मेरी, तो कम से कम मैंने 600-700 रुपए का ऑर्डर दिया है। याद रखिए कितने का, 600-700 रुपए का ऑर्डर। तो ये जो मेरा 50 रुपया बच गया, उसमें से मैंने डिलीवरी बॉय को सब मिला के, पेट्रोल अलाउंस, बोनस बिनस सब मिला के 30-35 रुपया बांट दिया। तो एक ऑर्डर के पीछे, 100 रुपए की ऑर्डर के पीछे कम से कम मेरा 10 या 15 रुपए का प्रॉफिट निकला है। किसका, उबर का, स्विगी का, जोमेटो का। फायदा है, इट्स अ विन विन सिचुएशन, किसी का नुकसान नहीं। डिलीवरी बॉय इतने सारे हैं जो आज बहुत अच्छे अच्छे इनकम कमा रहे हैं। मेरे नासिक में डिलीवरी बॉय से मैं बात किया था, मैंने 20-20 हजार रुपए आराम से कमाते हैं, आराम से कमा लेते 20 हजार रुपए। तो सबका फायदा, ग्राहक का फायदा, सस्ते में माल मिला। मतलब सस्ते में इस हिसाब से कि अगर आने जाने का खर्चा जोड़ दो तो पेट्रोल का कॉस्ट जाएगा, कार का कॉस्ट जाएगा, ट्रैफिक की झिकझिक है, सिग्नल लगेंगे तो वो बच गया। घर पे खाना आ गया तो आप आराम से टीवी देखते देखते फैमिली के साथ गप्पे मारते हुए खाना खा सकते हो। हाइजीनिक है, घर पे आप सर्व कर सकते हो। जो डिलीवरी बॉय है उसको अच्छी खासी नौकरी मिल गई, पगार मिल गया। होटल वालों को एडिशनल बिजनेस मिल गया। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, 100 रुपए की वस्तु बेचने के बाद स्विगी, जोमेटो, उबर वालों को बैठे बैठे आराम से 10 या 15 रुपए मिल गए। अब मजा तब शुरू होता है दोस्तों जब ऑर्डर की अमाउंट बढ़ती है। मान लो 500 रुपए का ऑर्डर है, तो बताओ कोई भी कैलकुलेट करके कि स्विगी वालों को कितना। सोच नहीं रहे हैं हम कुछ अलग, क्या ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा देके कि कोई ऐसा प्रॉब्लम में ढूंढू सोसाइटी में जिसका सोल्यूशन इतना अच्छा हो, सबसे सस्ता हो, और उस सोल्यूशन को अगर मैं एड्रेस करता हूं तो डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी मिलेगी। और पैसा भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा आज का काम आपकी सोच को बढ़ावा देना, यही मेरा आज का काम है। और इसीलिए डॉक्टर बारी हैज कॉल्ड मी टू हैव अ डिस्कशन विद यू। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूं जो मैंने किया है। मैंने 3-4 एग्जांपल आपको दिए। एज एन एंटरप्रेन्योर जब भी आप सोचते हो तो उसकी कुछ स्टेप्स होनी चाहिए। एज ए एंटरप्रेन्योर आप जब भी कुछ काम करते हो तो स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये स्लाइड आपका लाइफ बना देगी दोस्तों। ये स्लाइड आपको बाकी सारे लोगों से, बाकी लीग से हट के सोचने को मजबूर कर देगी। स्टेप्स बोल सकते हो इसको, आप इसको क्वालिटीज भी बोल सकते हो। सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है तो यू मस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। Positive attitude leads to positive thinking. Positive thinking leads to positive solutions for difficult problems. I repeat, positive attitude leads to positive thinking. Positive thinking leads to the positive solutions for difficult problems. इसको हमेशा याद रखें। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए क्या करना है दोस्तों, आपके पास घर में टीवी होगा, उसको रिमोट होगा। जब भी कोई चैनल पसंद नहीं आता है आप क्या करते हो, चैनल बदल लेते हो। अच्छा मान लीजिए वो भी चैनल पसंद नहीं आया, वापस बदल दिया। 10 चैनल आपने चेंज कर दिए, सभी बकवास निकले, आपको मजा नहीं आ रहा, आप क्या करोगे, टीवी बंद कर दोगे। बस दोस्तों, आज के बाद डॉक्टर प्रसाद के सेशन से ये एक बात हमेशा याद रखना कि आपको आपके लक्ष्य से हटाने वाले जो भी निगेटिव सोच आपके आजू बाजू में है, जो भी निगेटिविटी है, जो भी गॉसिप है, जो भी निगेटिव माइंडसेट्स है, उनको आपको टीवी के रिमोट की तरह स्विच ऑफ कर देना है। आई रिपीट, आपके आजू बाजू में जो भी निगेटिविटीज है,
कोई भी नेगेटिविटी हो सकती है, गॉसिपिंग हो सकती है, बहुत सारी चीजें अपने आजू बाजू में रहती है। सबसे पहले उनको कट ऑफ कर दो, सबसे पहले उनको स्विच ऑफ कर दो, सबसे पहले उनको अपने माइंड से निकाल दो, सबसे पहले उनके ऊपर जो हमारा फोकस है उधर से हटा दो, क्योंकि तभी जाके आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपने में ला सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी तकलीफ हो, आजू बाजू कोई भी व्यक्ति निगेटिव शब्द भी अगर आपके सामने बोलता है, सबसे पहले उस व्यक्ति को हटा दो बाजू में, उससे वास्ता तोड़ दो, उससे संबंध तोड़ दो, उसको कुछ मत करो। हाँ, उस व्यक्ति को पर्सनली मत कुछ करो। मैंने क्या कहा, उस व्यक्ति को आपके कांटेक्ट से दूर कर दो, क्योंकि वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड को निगेटिव कर देगा और आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये हर एक क्षेत्र में, कहीं पे भी जाइए, यही होता है। अगली बात, जब भी आपको आगे बढ़ना है, एज एन एंटरप्रेन्योर आगे जाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करनी है मालूम है? आपको हमेशा ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो कि सक्सेसफुल है। मैंने 4 एग्जांपल दिए यहां तक, बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। आपको किसे फॉलो करना है? जो कि सक्सेसफुल है, जो कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जो कि कोच है, जो कि गाइडेंस देता है, जो कि कंसल्टेंसी देता है, उसे आप फॉलो करें। ठीक है? और फिर वापस वही मसला आएगा कि आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को डिटेल में सॉल्यूशन में चाहिए, सीखिए। और एक बात, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, लर्न एंड अनलर्न। लर्निंग में क्या होता है, आप नई चीजें सीखते हो, और अनलर्न में क्या होता है, कोई भी जो आपका प्रिजुडिस है, किसी चीज वस्तु की तरफ, कोई भी मैटर की तरफ, कोई भी प्रॉब्लम की तरफ देखने का जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका प्रिजुडिस है, जो आपका नजरिया है, उसको बाजू में रख के नई सोच लाना, इसे बोलते हैं टू अनलर्न एंड लर्न न्यू थिंग्स। पहले जो दिमाग में भूसा भरा है, जो गलत चीजें गई है, उनको निकाल दो, अनलर्न करो और वापस रीलर्न करो, नई चीजें सीखो। अगली बात है फोकस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। दोस्तों, एज अ एंटरप्रेन्योर आपको अल्टरनेटिव नहीं है, आपको खुद अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। आप वेट नहीं कर सकते किसी के लिए कि कोई आए और मेरे को पैसा दे, मुझे मदद करे, मुझे हेल्प करे, मुझे सपोर्ट करे। एज अ एंटरप्रेन्योर यू हैव टू बिकम अ सेल्फ मेड पर्सन। ये आप किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते यार मेरे फादर के पास पैसा होता तो आज मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर होता। रॉन्ग। आप ऐसा नहीं बोल सकते यार मैं अगर कहीं और होता, अमेरिका में होता, तो आज मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर होता। नहीं, you have to take control of your own life. There is no other alternative for this. आगे क्या है, ये सारी स्टेप्स, ये एवरीथिंग ओन बाय, मैं ये सोच के इसमें मैं काम कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ पिछले 20 साल से। ठीक है? उसके बाद आपको एक यूनिक सॉल्यूशन ढूंढना है जिसका फायदा सीधे सीधे सोसाइटी को हो। माने सोसाइटी के लिए सॉल्यूशन ढूंढो, पैसों के लिए सॉल्यूशन मत ढूंढो। मैं रिपीट करता हूं, सोसाइटी के लिए सॉल्यूशन ढूंढो, खुद के लिए, पैसे के लिए सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है आपको। क्योंकि क्या होगा, जब सोसाइटी के लिए सॉल्यूशन ढूंढोगे आप, और जब वो उनके साथ शेयर करोगे, जब उन्हें पसंद आएगा, तो वही लोग आपके सबसे बड़े प्रमोटर, समर्थक आपके ग्रुप में आ जाएंगे, आपके पक्ष में आ जाएंगे, और वो लोग आपके ब्रांड को आगे लेके जाएंगे। इसलिए सॉल्यूशन शुड बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट। आई रिपीट, मनी, पैसा, शोहरत, फेम इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट। ये दुय्यम है, दूसरी चीज है। पहले तो सोशल वर्क पे फोकस करो, किसी का अच्छा करोगे तो अपना अच्छा होगा, इस पे यकीन रखो। अगली बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वी मस्ट क्रिएट अ टीम। बगैर टीम के हम आगे नहीं जा सकते। क्योंकि देखिए, मैं अगर ये मांगू कि बस मुझे सब कुछ आता है, बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। जब मैं ये कहता हूं कि मुझे सब कुछ आता है, आई एम द बेस्ट, तो मैं एक बॉडी फ्रेम ऑफ माइंड में चला जाता हूं, मेरा माइंड ब्लॉक हो जाता है, मैं सॉल्यूशन को ढूंढ नहीं पाता हूं, और मेरा ईगो बढ़ जाता है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर यू मस्ट हैव जीरो ईगो। एक बहुत अच्छा छोटा सा सेंटेंस है, बिग पीपल स्मॉल ईगो, स्मॉल पीपल बिग ईगो। जितना ईगो बड़ा है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है? तो यू मस्ट हैव अ टीम, यू मस्ट प्लान योर एक्टिविटीज।
जो भी करना है प्लानिंग के साथ करना है, टीम के साथ बात करके प्लान करना है एक्टिविटीज को, और उसके बाद परफॉर्म योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट. डोंट वरी व्हाट द एंटायर वर्ल्ड इज थिंकिंग अबाउट यू. आई रिपीट, डोंट वरी अबाउट व्हाट एंटायर वर्ल्ड इज थिंकिंग अबाउट यू. गिव योर बेस्ट. ये करने के बाद भी जब आप कस्टमर से फीडबैक लेंगे, रिव्यू लेंगे और लोगों से पूछेंगे सर मेरा एफर्ट कैसा लगा, तो चांसेस है कि वो आपको डाउन कर दे, वो आपके मोरल को लूज कर दे. ऐसा भी हो सकता है इतनी मेहनत करने के बाद आपको पहली बारी सफलता ना मिले. तो क्या करना है दोस्तों? हार के बाजू में बैठ जाना है? बिल्कुल नहीं. उस वक्त आपको वापस चले जाना है. पॉइंट नंबर 1, पॉजिटिव एटीट्यूड. एंटरप्रेन्योर के बारे में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई हो सकती है तो वो है पॉजिटिव एटीट्यूड. 10 बार कोशिश करूंगा, हार गया कोई बात नहीं, कम से कम मुझे उन 10 तरीकों का पता तो चल गया कि जिनकी वजह से मैं हार गया, जिनकी वजह से मैं पीछे रह गया. अब 11वीं बार मैं वो पहले की 10 मिस्टेक्स नहीं होने दूंगा. तब जाके मुझे शायद यश मिले, तब जाके मुझे सक्सेस मिले. और 11वीं बार भी अगर मैं फेल हो गया तो मैं 12वीं बार खड़ा रहूंगा. ये जो सोच है, ये जो एटीट्यूड है, ये आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाएगा दोस्तों. देयर इज नो अदर वे आउट. और फाइनली, कन्वर्ट योर कस्टमर्स इनटू प्रमोटर्स. जब आपको कस्टमर मिल जाता है कोई, तो वो आपका एक कस्टमर, उसके ऊपर इतना फोकस करो, इतना उसको प्रायोरिटी दो, इतना उसको इंपॉर्टेंस दो कि वो कभी भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाए, बल्कि वो आपको और 10 क्लाइंट्स आपको लाके दे. ये फिलॉसफी है मेरे, जो मैं 20 साल से अडॉप्ट कर रहा हूं. ये मैंने अपने मन से कुछ लिखा है, कुछ बड़े बड़े लोगों से कुछ सीखा है, लेकिन इन सारी चीजों पे अगर आप सोचेंगे तो यू कैन बिकम अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. ओके, आप अपने तरफ से इसमें कुछ पॉइंट्स भी जोड़ सकते हैं जब आप खुद की लिस्ट बनाओ कि मुझे कौन सी चीजों को प्रायोरिटी देनी है. मैंने मेरे लिए, खुद के लिए पहली चीज को प्रायोरिटी दी है, दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखिए दोस्तों, और एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि इस सेशन के बाद आपको घर जब जाएंगे तो एक होम में देना चाहता हूं. दोस्तों, आपको स्क्रीन दिख रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जस्ट कोई एक बार एक जन कोई कंफर्म कर दो बस. Yes, you are audible, sir. थैंक यू जरूर सर. आपके सामने पोस्टर में 2 लोग हैं सर. यस, मैंने आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि इन दोनों का नाम क्या है. आप सब लोग भली भांति जानते हैं. ठीक है, मैंने टाइटल दिया है दोस्तों इस स्लाइड को, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. 5 मिनट की जो मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इसे बड़े गौर के साथ सुनिए. बाकी जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो, उसको साइड में रख दे. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. दाई तरफ है छोटे भाई, लेफ्ट हैंड साइड में. बाई तरफ है मिस्टर अनिल भाई, और राइट हैंड साइड में, मतलब स्क्रीन के सामने अगर मैं बैठा हूं तो राइट हैंड साइड में है मुकेश भाई, मोटा भाई. 2002 में अनफॉर्चुनेटली जब उनके फादर नहीं रहे, तो सारी जिम्मेदारी इन दोनों भाइयों के ऊपर आ गई. 2005 में कुछ तकरारें होने लगी दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों की जो सोच है, वे ऑफ थिंकिंग है, वो अलग अलग है. और फाइनली, जो हर घर में होता है, घर घर की कहानी, 2008 में दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया. कोकिलाबेन जो है, उन्होंने ये पूरा मैनेज करवाया, क्योंकि वो दोनों तो किसी और की सुनते नहीं थे. और ये भी बात है एंटरप्रेन्योर के साथ कि वो कभी किसी की सुनता नहीं. तो 2008 में, सुन लीजिए इस बात को, पूरे गौर के साथ सुनिए, पूरा फोकस चाहिए मुझे, आपका पूरा अटेंशन चाहिए अगले 5 मिनट के लिए. 2008 में जब बंटवारा पूरा हो गया, कंपनी डिवाइड हो गई. रिलायंस इंडस्ट्रीज जो फादर धीरू भाई ने जो खड़ी करी थी जो कंपनी, उसकी डिवाइड हो गई. तो जानकारों का ये कहना है, मैंने भी खुद उस वक्त मुझे पूरा मार्केट की मालूमात थी, मैंने पूरा खुद मेरा स्टडी किया. तो जानकारों का ये कहना है दोस्तों कि 2008 में जब बंटवारा हुआ, ये बंटवारा मुकेश भाई के, मोटा भाई के, राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन, उनके फेवर में नहीं था. आई रिपीट, 2008 में जब बंटवारा हुआ तो मोटा भाई के फेवर में बंटवारा नहीं था. ऐसा कहा जाता है कि
अगर मान लीजिए 100 रुपया है या 100% रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी की पूरी, और उनके बहुत सारे उद्योग थे अलग अलग, तो इन सारों का जो डिवीजन हो गया, ये ऐसा कुछ लोग कहते हैं, कोई बोलता है 60 हो गया 40 हो गया, 60 हो गया अनिल भाई के फेवर में, 40 हो गया मुकेश भाई के फेवर में, कोई बोलता है 65 गया था अनिल भाई के फेवर में, कोई बोलता है 35 गया था मुकेश भाई के फेवर में। खुद मुकेश भाई इससे खुश नहीं थे, बहुत नाराज थे। दोस्तों आपको एक बात बताता हूं, 1998 में मुकेश भाई ने रिलायंस कम्युनिकेशन शुरू करने की बात अपने फादर से, धीरूभाई से करी थी, और उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन शुरू करने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया था। मैं वापस में रिपीट करता हूं, 1999 में बड़े भाई मोटा भाई ने रिलायंस कम्युनिकेशन की नींव रखी थी। तो सोचा जाए तो रिलायंस कम्युनिकेशन वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ मोटा भाई। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो बड़े दुख के साथ छोटे भाई ने मांग लिया, इसके कारण बड़े भाई ने उनको रिलायंस कम्युनिकेशन दे दिया, उनको रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, उनको रिलायंस असेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड का काम करती थी उसको दे दिया, उनको रिलायंस पेट्रोलियम दे दिया, उनको रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, उनको रिलायंस कैपिटल दे दिया। और मोटा भाई के पास ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 40% का जो बड़ा कंपनी का पार्ट था पॉलिस्टर का, और दूसरा था ऑयल का, सिर्फ इतना पार्ट मोटा भाई के पास आया। अब इस डील से तो अनिल भाई बहुत खुश हो गए कि चलो भाई चलो, मैंने हक से मांग लिया, और गलत नहीं है, चलो बड़ा भाई है, हम करते हैं ना, बड़े भाई है, चल भाई तू छोटा है ले ले, कोई बात नहीं, हो जाएगा, और आगे बढ़ो, मुझे खुशी है कि आप आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। तो 2008 में ये बंटवारा हो गया। अब दोस्तों इस स्लाइड को हमको जो देखना है, ये आगे 5-6 पॉइंट से उनके बारे में देखना है। छोटे भाई अनिल भाई मल्टीटास्किंग बहुत करना चाहते थे। मल्टीटास्किंग मतलब क्या, रिलायंस कम्युनिकेशन में उनका इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं था, उनको दिख रहा था कि आरकॉम में बहुत पैसा बन रहा है, पैसा लाओ पैसा लाओ, पैसे की वजह से उसमें लिया। उनको रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरेस्ट था, क्योंकि पैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर 2008 के बाद बहुत ऊपर आने वाला था और आ भी रहा था। रिलायंस कैपिटल में इंटरेस्ट था, रिलायंस पेट्रोलियम में था, आरपीएल बोल के कंपनी थी। इन सारी चीजों में अनिल भाई को इंटरेस्ट था। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे बैठे बैठे पैसा, कैश इनफ्लो वाली कंपनियां सब अनिल भाई ने ले लिए। दोस्तों मैं रिपीट करता हूं, कैश जहां से आ सकता था सारी कंपनियां अनिल भाई के पास, ठीक है। और मोटा भाई के पास आ गई अपनी रिलायंस इंडस्ट्री, जो ऑयल इंडस्ट्री है, वहां पे कोई ग्लैमर नहीं है, वहां पे कोई बहुत ज्यादा पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं है, सिंपल है। अब 2008 में जब अनिल भाई ने बहुत सारी कंपनियों का काम ले लिया, तब मुकेश भाई ने सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस किया, ऑयल एंड रिफाइनरी। और पॉलीमर तो, पॉलिस्टर तो मतलब उनकी पूर्वों से धीरूभाई ने शुरुआत की थी, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अब देखिए फोकस की बात आती है। फोकस की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में हमें यह सोचना पड़ेगा कि फोकस कहां पे था दोनों का। अगर मान के चलिए कि फोकस की बात करें तो जो हमारे मोटा भाई है वो एक कंपनी की तरफ फोकस कर रहे हैं, अनिल भाई 4-5-6 कंपनी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो मुझे आप खुद बताइए, एक समय में आप फार्मा के स्टूडेंट हो, मैं भी रह चुका हूं, मान लीजिए आप फाइनल ईयर में हो, और एक ही समय में आपने सामने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस रख दिया, आपने फार्माकोलॉजी रख दिया, है ना, आपने सुटिक्स रख दिया, और कोई एक सब्जेक्ट रख दिया, तो क्या चारों सब्जेक्ट पढ़ सकते हो आप? नहीं पढ़ पाओगे। तो देयर इज नो फोकस। और मोटा भाई का शांति से काम चलता है, आराम से, कोई भाई नहीं, आराम से पूरा स्टडी करा। और क्या कर, आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ ऐसी डील्स उन्होंने क्रैक करी थी जो लोग सोचते थे कि हो ही नहीं सकते। आउट ऑफ द इंडिया उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कुछ डील क्रैक की, एकदम शांति में, कोई ग्लैमर नहीं, एकदम शांति के साथ। अब जरा आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वर्क स्टाइल। ये जो वर्क स्टाइल है ना अनिल भाई का, क्या ये मैं बताऊं, देखो मैं कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन पूरी रिस्पेक्ट के साथ कर रहा हूं अनिल भाई के साथ कंपेयर, मुकेश भाई को, बिकॉज वो दोनों एंटरप्रेन्योर है। और कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि 10 साल के बाद अनिल भाई कहां पे होंगे, मुकेश भाई कहां पे होंगे। हम सिर्फ एक केस स्टडी में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनिल भाई का वर्क स्टाइल कुछ ऐसा है दोस्तों कि ही इज अ गो गेटर, मतलब एक चीते की तरह, एक टाइगर की तरह, एक झपटे में वो खाना चाहते, एक जाएंगे तुरंत, वो एक हिरन को खा लेंगे, एक झपटा मारेंगे उसके ऊपर, ये सोचे, गो गेटर एटीट्यूड बोलते हैं, बहुत स्ट्रांग है। दैट इज वेरी गुड, ही इज वेरी एग्रेसिव, और ऐसा एंटरप्रेन्योर आपको बहुत आगे भी लेके जा सकता है। वेयर अनिल भाई, ये मुकेश भाई की अगर मोटा भाई की बात करें
तो मोटा भाई का क्या है भाई, आराम से तसल्ली के साथ काम करो, अपना फाउंडेशन बनाओ, कॉन्टैक्ट बढ़ाओ, सोसाइटी के लिए काम करो, बाय प्रोडक्ट पैसा आने वाला है। आपकी मालूमात के लिए बोल देता हूं, 2008 में जब बंटवारा हुआ था तो अनिल धीरूभाई अंबानी भारत के टॉप के 10 एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में थे और मुकेश भाई टॉप 50 में कहीं पे भी नहीं थे, क्योंकि अनिल भाई के साथ इतना पैसा था। पैसा क्यों था? क्योंकि सारे पैसा बनाने वाली कंपनी उनके पास थी, तो इनके पास बहुत पैसा था। अब स्केल की बात करते हैं। अनिल भाई ने क्या किया, छोटी छोटी हर जगह पे छोटी छोटी कंपनियों में छोटे छोटे स्केल पे काम करा। मतलब उन्होंने हमेशा ये सोचा अगर ये नहीं चलेगा तो वो चल जाएगा, वो नहीं चलेगा तो वो चल जाएगा, वो नहीं चलेगा तो ये चल जाएगा। और मुकेश भाई की हमेशा बहुत बड़ी स्केल थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल रिफाइनिंग और ये सारी चीजों में बहुत बड़ी स्केल में वो काम करते थे, वो उनका स्टाइल रहा। अब दूसरी बात है थिंकिंग अबाउट लोन। अनिल अंबानी ने हर तरह के लोन उठा लिए बैंकों से, बहुत सी बैंकों में आज भी उनके बहुत कर्जे। दूसरी बात क्या करी मुकेश भाई ने, लोन बहुत आखिरी में उठाया। अभी अभी जब जियो का जब उन्होंने रोल आउट करा 2016 में, तब जाके कुछ उन्होंने लोन उठाने की कोशिश की। रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी के बारे में आज भी बोलता हूं मैं आपको कि सबसे ज्यादा कैश रिच कंपनी है ये आज के माहौल में, आज के जमाने में। चलो और आगे जाते हैं, मैनेजमेंट स्टाइल कैसी है। अनिल भाई जो है ना, ग्राउंड लेवल पे जब भी कोई काम होता था तो वो अपने सबॉर्डिनेट को दे देते, यार तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले। वेरएज मुकेश भाई क्या करते थे, मुकेश भाई हर एक प्रॉब्लम को ग्रास रूट लेवल पे जाके वर्कर के साथ बात करके समझने की कोशिश करते थे और फिर अपनी थिंक टैंक के साथ बैठकर उसका सॉल्यूशन ढूंढते थे। तो ये हो गया उनका वर्क स्टाइल और मैनेजमेंट स्टाइल। अब मैं आपको इसके बारे में ये बता रहा हूं आखिरी में कि आज ऐसी स्थिति है। अनफॉर्चुनेटली अनिल भाई के कुछ दाव गलत हो गए दोस्तों। जो 2008 में अनिल भाई भारत में टॉप 10 में थे और मुकेश भाई टॉप 50 में भी कहीं पे नहीं थे, आज ऐसी स्थिति है मोटा भाई भारत में नहीं, मोटा भाई विश्व में टॉप 5 में है। और अनफॉर्चुनेटली अनिल भाई पूरी तरह बैंकरप्ट हो गए। लाइफस्टाइल की बात अगर करें, मोटा भाई का लाइफस्टाइल बहुत सिंपल और अनिल भाई का लाइफस्टाइल अगर आप देखो, जब 2008 से लेकर 2015 तक जब वो बैंकरप्सी की तरफ नहीं गए थे, तो पूरे समय में अनिल भाई ऑलमोस्ट हर 2 दिन के बाद टीवी पे आते थे। ऑलमोस्ट हर 2 दिन के बाद बड़े बड़े ग्लैमरस हीरो और हीरोइंस के साथ घूमते थे और मोटा भाई कहीं पे भी नजर नहीं आते थे। एकदम सिंपल थिंकिंग, हाई सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। मोटा भाई का ओवरऑल थिंकिंग भी सिंपल है, रहन सहन भी सिंपल है, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं काम था। तो देखो दोस्तों, ये सोच है। मैं ये नहीं कहता हूँ कौन सी सोच सही है कौन सी गलत है, ये मैं आपके ऊपर सोच छोड़ देता हूँ। पर हमारे सामने एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है और कई सारे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और एक देता हूँ, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर का है। तो मेरे जमाने में तो जब आपके जो भी आप प्रोफेसर थे आपके जैसे श्वेत भाई है और बाकी सारे प्रोफेसर जो आप देख रहे हैं, हमारे टाइम में सबके मन में सिर्फ तेंदुलकर का नाम है। आज जैसे विराट कोहली, ठीक है, बीच में एक कंपैरिजन आ गया था महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह का। ये सोचने का तरीका देखो इनका। तो एज एन एंटरप्रेन्योर जिसको आगे बढ़ना है वो अपनी सोच से आगे बढ़ता है, कोई हेल्प नहीं कोई करता, अपनी सोच बदलनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब इस पॉइंट पे मैं आपके साथ मेरी खुद की एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। ये सक्सेस स्टोरी मेरी वैसे तो चालू हुई जब मैं मार्केटिंग में था 2000 साल में। मैंने फार्मेसी कंप्लीट किया, मेरे 2000 साल का मेरा पासिंग है। मेरे पासिंग होने के बाद कुछ आर्थिक परिस्थितियां घर की ऐसी थी कि मुझे जॉब करना पड़ा, तो मैंने मार्केटिंग चूज किया क्योंकि मार्केटिंग में सबसे अच्छा पैसा। और ये सब करते करते फिर मार्केटिंग करा, मैंने इंडस्ट्री में काम करा। फिर मैं फॉर्चुनेटली डॉक्टर तहेले सर के माध्यम से मैं आरसी पटेल में ज्वाइन हुआ एज ए एमफार्म स्टूडेंट। फिर सुराणा सर का गाइडेंस मिला और तहेले सर के जाने के बाद मैंने सेकंड सेमिस्टर से ही डॉक्टर बारी सर जो कि मेरे गुरु है उनका मुझे गाइडेंस मिला। और उसके बाद तो आगे की हकीकत आप सब लोग जानते हो, लेकिन ये सारी हकीकत है मेरे एज अ फार्मासिस्ट की। पर एज एन एंटरप्रेन्योर अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, होप आपको दिख रहा होगा क्लियर कट। ये हाइलाइट्स है।
पहला कॉलम देखो, की लर्निंग फाउंडेशन एंड एग्जाम्स। दोस्तों 2004 में, वैसे तो मैं 2000 साल से सभी क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट करता था, सारी चीजें करता था। आज जो मुझे आइकॉन अवार्ड मिला है ना, उसकी नींव एक्चुअली 2000 साल से शुरू हुआ ये सारा सफर। और ये आइकॉन अवार्ड मुझे मिला है भारत के 4000 एंटरप्रेन्योर्स के बीच में मेरा सिलेक्शन हुआ। आई रिपीट, 4000 एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो ये 2004 से मैंने ना उसको कमर्शियल कर दिया थोड़ा सा, मैंने पैसों के हिसाब से सोचने लगा। लेकिन देखिए, कोई भी काम अगर करना है, देखो मुकेश भाई ने क्या करा, रिलायंस कम्युनिकेशन में उनका इंटरेस्ट, उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन की स्थापना करी थी 2008 में, 1998 में, 2008 में उनसे वो कंपनी छीनी गई। सोच सकते हो कि उनको कितना दुख हुआ होगा। 2008 में उन्होंने बनाई हुई कंपनी छोटे भाई को देनी पड़ी। वो शांत नहीं बैठे, वो सोच रहे थे। 2008 से लेके 2016 तक 8 साल उन्होंने सोचा, सीखा, पढ़ा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करा, एग्जाम्स माने लाइफ की एग्जाम्स उन्होंने दी, और 2016 में ऐसा प्लान लेके आ गए कि आज रिलायंस जियो जो है वो भारत में ऑलमोस्ट नंबर 1 होने की कगार है। उसी तरह से मोटा भाई से सीख लेते हुए की लर्निंग मैंने ली, फाउंडेशन ली 2004 से लेकर 2016 तक। ये सारे पीरियड में मैं उधर एकेडमिक में प्रोफेसर था, लेक्चरर था, मेरा पीएचडी कर रहा था, लेकिन मेरा कुछ सपना अलग था। तो पहली इनकम जो मुझे 2004 में हुई थी, आई होप आई एम ऑडिबल और आपको ये सब दिख रहा है, ओके? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बीच में टोक देना। 2004 में जब मैंने शुरू करा था मेरा सफर एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ कोच, एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि 2004 में मुझे ऑन एन एवरेज महीने के 4000 रुपए, कितना मिलता था? 4000। आई रिपीट, 4000। तो 2004 से लेकर 2016 तक शांति से चुपचाप पूरा फोकस करके पीएचडी करते हुए भी मैं ये सीख लेता रहा इस फील्ड में। सारी की लर्निंग लिए, बड़े बड़े लोगों से सीखा, अच्छे अच्छे गुरु बनाए, फाउंडेशन मेरा स्ट्रॉन्ग करा, अलग अलग एग्जाम्स दी, और 48,000 से मेरी ग्रोथ हो गई 2016 तक। इनकम की ग्रोथ कर दो, मैं फार्मेसी की पगार की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए एंटरप्रेन्योर बात कर रहा हूँ। 2016 तक मेरी इनकम हो गई महीने की 20,000। मैं बड़ा खुश था कि भाई मैंने 4000 रुपए महीने से चालू किया, मेरे को महीने का हो गया 30,000 रुपए महीना। 5 टाइम ग्रोथ कर ली मैंने 12 साल में। लेकिन मैं जानता था कि ये बहुत स्लो ग्रोथ है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत सोचा मेरी संगिनी ने, मैं आपको उनसे भी मिलवाने वाला हूँ थोड़ी देर में, मेरी संगिनी ने, मेरी वाइफ ने, इसमें मुझे बहुत, क्योंकि जूही को तब कुछ 10, 12, 15 हजार रुपए की एक जॉब थी, एक स्कूल में वो टीचर थी। और 2016 में दोस्तों मैंने निर्णय लिया कि मुझे आप फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप करना है। हर पीस 2016 में मैंने निर्णय लिया दोस्तों कि मुझे फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप करना है। फाउंडेशन देखिए, मुझे 20,000 की स्टेबल इनकम थी, और 10, 15, 20,000 मेरी वाइफ का जॉब था जो कि स्टेबल था। 2016 से लेकर 2020 तक 4 साल में जब मैंने फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप करा, देखो मैं जब पार्ट टाइम कर रहा था 4 से लेकर 16 तक, 12 साल में मेरी सैलरी की ग्रोथ, मेरी इनकम की ग्रोथ थी, सैलरी तो एंटरप्रेन्योर को रहती नहीं, इनकम रहती है। इनकम की ग्रोथ थी 48,000 से लेकर 2,40,000, माने कितना हो गया दोस्तों? कितना हो गया? 5 टाइम। और 2016 से लेकर 2020 के बीच में 4 साल में जब मैंने फुल टाइम ये काम चालू किया, मेरी इनकम की ग्रोथ आपके सामने है। इन सब में मेरे माँ बाबूजी का आशीर्वाद है, महाराजन से दुआ है, आशीर्वाद है, मेरे फैमिली का सपोर्ट है। ये इनकम मेरे आपके सामने सब है, खुला खुला आपके पास। तो क्या ये बहुत बड़ी इनकम हो गई? 2,40,000 से आप 10 गुना बढ़ गए, क्या ये बहुत बड़ी इनकम हो गई? हाँ, अगर मैं कहीं और जॉब करते रहता तो उस माध्यम से ये बड़ी इनकम हो सकती। लेकिन दोस्तों, एंटरप्रेन्योर उसे कहा जाता, मैंने शुरू में कहा था देखो दोस्तों, कि अगर हमको कुछ करना है तो हमेशा ये सोच रखनी पड़ेगी कि मुझे सोसाइटी के लिए क्या करना है। और मैंने ये तय कर लिया है, मेरी इनकम मैंने सब आपके सामने रखी, मेरे फ्यूचर के गोल सेट है, मैं जो करना वो मैं करूंगा। माँ बाबूजी के आशीर्वाद है, महाराज के आशीर्वाद है, आप सब दोस्तों की दुआ है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो भी होगा अच्छा होगा। लेकिन मेरा गोल ये नहीं है, मेरा गोल ये है, ये जो मेरी टीम है, टीम ड्रीम अचीवर्स, इस टीम में मुझे 500 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने हैं टिल 2024। आई रिपीट,
2024 तक टीम ड्रीम अचीवर्स में 500 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा करना है। मुझे नहीं मालूम इन 70 लोगों में वो एक एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 20 भी हो सकते हैं, या फिर सारे 70 के 70 एंटरप्रेन्योर उसमें हो सकते हैं। ये सब आपकी सोच के ऊपर डिपेंड। पर मेरा टारगेट सेट है 2024-25, उधर मोदी जाएंगे इलेक्शन के लिए और इधर हमारी 500 लोगों की टीम खड़ी होगी, तैयार खड़ी रहेगी, जो कि सक्सेसफुल लोग हैं, और उनमें से तो कई सारे मुझसे भी ज्यादा कमाएंगे, उसमें मुझे बड़ी खुशी होगी। तो ये मेरा सोशल गोल है। इसमें स्वार्थ क्या है? कोई नहीं है। और जब कोई गोल सोशल होता है, जब समाज के लिए आप कुछ करते हो, अच्छा ही होगा, समाज का भी और आपका भी। एक बहुत अच्छा सेंटेंस है दोस्तों, when you do good for others only good will happen to you. When you do good for others only good will happen to you. Nothing, never bad can happen to you. ओके दोस्तों, ये मेरा छोटा सा ऑफिस है जिसमें मैं आज बैठा हूँ, उसका ये फोटो है। पीछे जो आपको दिख रहा है वो 4000 लोगों में जो आइकॉन अवार्ड मुझे मिला है, वो है यहाँ पे आज के मेरे सेशन का एक टेक अवे जो है वो आपके लिए मैं सामने रख रहा हूँ। और दो चीजें हैं। क्या होता है, बहुत बार कोई भी ऐसा सेशन जब हो जाता है तो बस हो गया 2 घंटे का सेशन, 1 घंटे का सेशन, लोगों ने बात कर ली, आए मस्त बात की, हम भी मोटिवेट हो गए, बहुत अच्छा लगा, 70 लोग यहाँ पे बैठे, आगे क्या हुआ? कोई फॉलोअप नहीं। ऐसा नहीं होगा। देखो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एकेडमी, टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है। आपको अगर मालूम नहीं टेलीग्राम क्या है कैसा है, तो आपके जो कोच है, जो आपके मेंटर्स है, बारी सर है, श्वेत सर है, और आपके कुछ मॉनिटर्स भी है, कुछ आपके ग्रुप मेंबर्स भी है जो आप इसमें ज्यादा इसमें मालूमात रखते हैं, इनके साथ में आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक श्वेत सर के पास है, उस ग्रुप में है, और बारी सर के भी पास है। आप इस लिंक से ज्वाइन करो। ये पूरी जर्नी में मैं आपके साथ में रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। आई रिपीट, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की पूरी जर्नी में जब तक आप इस ग्रुप में हो, टेलीग्राम के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एकेडमी के आप सदस्य हो, तब तक ये मेरा वादा है आपसे दोस्तों कि मैं आपके साथ हूं। और अगली बात, जो भी जैसे मान लीजिए आप 70 लोग हैं, पूरी 200 लोगों की स्ट्रेंथ थी, सब लोग नहीं आ पाए, तो जिन लोगों ने ये सेशन मिस कर दिया, मुझे 2-3 घंटे का समय दीजिए, थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। ये पूरा सेशन एडिट करके ये जो सामने यूट्यूब चैनल है डॉक्टर प्रसाद ड्रीम अचीवर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस, इस चैनल पे आप जाएंगे तो यही सेशन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊंगा थोड़े समय के बाद शाम को, या फिर इसी चैनल पे आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की जानकारी मिलेंगी। यूट्यूब के बारे में तो आप सब लोग जानते हो, मुझसे शायद ज्यादा जानते हो, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको करनी है, ये आपके टेक अवेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेप पे आपको कोच चाहिए। ये है मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रसाद ड्रीम अचीवर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस। मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और इसमें जुड़े, जितना हो सके इसमें जुड़े सारे दोस्तों के लिए लेके आइए। और वो टेलीग्राम का ग्रुप है दोस्तों, इसको हम सक्सेसफुल बनाते हैं। कोई स्वार्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, बस एक ही स्वार्थ है कि यहाँ से HR पटेल से हमें अगले 5 सालों में कम से कम 50 एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा करना। आपकी जॉब चालू रखे, आप जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी समाज सेवा कर रहे हो, जो कि आपके शिक्षक है, मान लीजिए श्वेत भाई है, बहुत सारे सभी मेरे दोस्त हैं, वो सब चालू रखें, लेकिन कुछ ऐसा सोचे। तो इसका मतलब ये नहीं जो मैंने किया वो आपको करना चाहिए, या फिर इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको वड़ा पाव बेचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम ढूंढिए, मेरे से शेयर करिए। आई एम ऑल्सो कंसल्टेंट फॉर कॉस्ट कटिंग, आई एम ऑल्सो कंसल्टेंट फॉर कैश फ्लो मैनेजमेंट, आई एम ऑल्सो कंसल्टेंट फॉर रेजिंग द फंड्स फॉर योर न्यू वेंचर। लेकिन एक वार्निंग सिग्नल मैं आपको शेयर करता हूँ, तो वो ये है कि फिलहाल सिचुएशन ये है भारत में कि 10 में से 8 एंटरप्रेन्योर्स जो पिछले 4 साल में खुले थे, जो पिछले 4 साल में जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया था, 10 में से 8 लोग फेल हो चुके, 10 में से 8। और यही कारण है कि क्यों हमें एक कोच की जरूरत है। तो दिस इज माय वेबसाइट,
I request you to put it. So I welcome my life partner in every situation. She is my wife, Mrs. Zui Dahivelkar, and she wants to say something to you. So over to you, Zui. It's all yours. Dosto, yes. Thank you, sir. Myself, Mrs. Dahivelkar. Today, first of all, I would like to congratulate sir for this recent All Over India Iconic Award, which I must say is that you two all are very lucky to have him listening today, right now on this platform. I have seen his journey almost. I have witnessed his journey as an entrepreneur. Today, he has set an successful example of an entrepreneur who has become a successful entrepreneur today. So, I would just like to say that he could all achieve this because it was his passion. So, in any part of time when you want to become an entrepreneur, you should have a passion, you should have a vision, which he had, and so he could achieve it. Just a small thing that today this session which you have been listening, I had been listening since 3 to 4 years back, and I was also a salaried person. I was being salaried, but that time he used to say me that be an entrepreneur, be an entrepreneur. I had a question, why entrepreneur? But I used to just follow him. As his wife, I used to follow him. I followed him, and today I got the answer that I today on this note, I myself I am an entrepreneur. I am no more salaried. I am not answerable to anyone, and today I am earning more than my salary which I have. So I would like to thank sir for giving this opportunity. Thank you, sir. येस मित्रांनो, मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की आम्ही दोघे तुमच्या सोबत आहोत. तुमच्यामधला जो एंटरप्रिनर आज जागा झालेला आहे त्याला परत खाली पडू देऊ नका. माझं ते वाक्य लक्षात ठेवा की यू हॅव टू बी पॉझिटिव्ह, यू हॅव टू बी सेल्फ मोटिवेटिंग, आणि विश्वास ठेवा की काहीही असंभव नाहीये. आणि आज जसे तुमचे पॅरेंट्स तुमच्या सोबत आहेत, तुमचे मित्र तुमच्या सोबत आहेत, आज तुम्हाला 2 नवीन मित्र मिळालेले आहेत, तुम्हाला 2 नवीन मेंटर्स मिळालेले आहेत, तुम्हाला 2 नवीन कोच मिळालेले आहेत. Just trust yourself, trust your parents, trust your God, and trust your coaches. So friends, that's all from my side. That's all from our side. Looking forward to meet you on Telegram and looking forward to meet you soon on our YouTube channel. Thank you so much. Once again, I thank the management. दोस्तों, एक आखिरी बात करता हूं, then I will stop. समय की भी कमी है और मैंने आपको कमिट किया था कि मैं इस समय में खत्म करूंगा. दिल से कहता हूं दोस्तों, 10 साल में शिरपुर में रहा हूं और मेरी एंटरप्रेन्योर की सोच को जागरूक करने में शिरपुर का बहुत बड़ा हाथ है. उन सभी लोगों का, सभी मेरे कोचेस का, सुराना सर हो गए, बारी सर तो मेरे मेंटर है लाइफ लॉन्ग, भाऊ साहब से मैंने बहुत सीखा है, सर से, भाई से भी बहुत सीखा है, भाई साहब से, ये सब हमारे गुरु है. भाई जी ने जो किया है शिरपुर के साथ और जो कायाकल्प कर दिया है शिरपुर का, मैंने ऐसा शहर नहीं देखा दोस्तों. मैं घुमा हूं, मैं पूरा महाराष्ट्र घुमा हूं, देश घुमा हूं, विश्व घुमा हूं. 7 देश अब तक तो मैं घूम चुका हूं पिछले 4 साल में. 7 अच्छे देश, में पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं 7 अच्छे देशों की बात कर रहा हूं. इतना अच्छा काम, इतना ग्रास रूट पे काम जो रिस्पेक्टेड भाई जी ने, भाऊ सर ने किया है, ये काम देखने को नहीं मिलता है. ये इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूं कि मैं उनके प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूं, but that is because I have learned from them. I have learned from all of them. और हमको भी, आपको भी सीखने का बहुत अच्छा मौका इन सब लोगों से, और मैं तो आपके साथ में हूँ. That's all from our side. Thank you so much, Dr. Bari sir. Thank you so much, Dr. Zawar sir, for taking the effort to bring me in front of your students. दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. थैंक यू सो मच. नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हमारा YouTube चैनल का जो लिंक है, वहां जाए, हमें सब्सक्राइब करें, हमें प्रेरित करें, मोटिवेट करें. हमारा फेसबुक पेज भी है, उसे भी लाइक करें.
जल्द ही लौट कर आएंगे आपसे मिलने के लिए एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।